তালিবানের দখলে আফগানিস্তান, তালিবানের দখলে কাবুল এবং এই মুহূর্তে তালিবান রাজের, তালিবান শাসনের ভয়ে কিন্তু আতঙ্কিত আফগানবাসী। কাতারে কাতারে আফগান বাসিন্দারা কিন্তু দেশ ছাড়তে চাইছেন। গতকাল থেকে সেই ভয়াবহ বিভীষিকাময় ছবি আমরা আপনাদের সামনে বারবার তুলে ধরেছি সংবাদ মাধ্যমে, যে কিভাবে কাবুল বিমানবন্দরের ছবিটা আপনারা দেখেছেন, যে কিভাবে মানুষ আতঙ্কিত, তালিবান শাসনের ভয়ে আতঙ্কিত মানুষ হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছিলেন দেশ ছাড়ার জন্য। এবং বিমানবন্দরের মধ্যে গুলি চলে এবং 7 জনের প্রাণ গিয়েছে। মরিয়া মানুষ দেশ ছাড়তে চাইছেন। তালিবান রাজে কিন্তু তারা থাকতে চান না দেশে। সকলের মধ্যে একটা অস্থিরতা, ভয়, আতঙ্ক এবং যেভাবে তালিবানরা রাজ চালাচ্ছে, সেখানে একাধিক সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের, সাংবাদিকদের বাড়ির ভেতর ঢুকে তল্লাশি চালিয়েছে। বিভিন্ন সাধারণ নাগরিকদের বাড়িতে ঢুকে গিয়ে তারা তল্লাশি চালাচ্ছে কোনো সরকারি কর্মী সেখানে রয়েছে কিনা, কোনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত কোনো আধিকারিক বা সেখানকার রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে যুক্ত, যে সমস্ত দূতাবাসগুলি সেই তার সঙ্গে যুক্ত কোনো কর্মী কোথাও রয়েছেন কিনা, এই সমস্ত কিছু কিন্তু খতিয়ে দেখার জন্য তল্লাশি চালাচ্ছে তালিবানরা। বিভিন্ন জায়গায় মেয়েদের ওপর একাধিক ফতোয়া জারি করা হয়েছে এবং এই যে পরিস্থিতি, সার্বিকভাবে এই মুহূর্তে আফগানিস্তানে তালিবান শাসনে কিন্তু আতঙ্কিত মানুষ, তালিবান শাসনে আতঙ্কিত সেখানকার মানুষ মরিয়া হয়ে কিন্তু দেশ ছাড়তে চাইছেন। কাতারে কাতারে মানুষ, কিভাবে বিমানবন্দরে, কাবুল বিমানবন্দরে কিন্তু হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছিল মরিয়া আফগান বাসিন্দাদের, আফগানিস্তানের মানুষদের। এবং শুধুমাত্র আফগানিস্তানের বাসিন্দারাই নন, বিভিন্ন দেশের, একাধিক দেশের মানুষ কিন্তু আফগানিস্তানে রয়েছেন, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা রয়েছেন। তাদের কারুকে কারুকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত যারা ছিলেন তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ এয়ারক্রাফটে। আরো অনেকেই কিন্তু এখনো, বিভিন্ন দেশের মানুষ, বিভিন্ন নাগরিক কিন্তু এখনো আফগানিস্তানে আটকে রয়েছেন। এবং ভারতেরও কিন্তু একাধিক নাগরিক এখনো আফগানিস্তানে আটকে রয়েছেন। আজ বিশেষ ফ্লাইটে কিন্তু ভারতে বেশ কয়েকজনকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। 150 জন ভারতীয় এসে ফিরেছেন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতও কিন্তু ফিরছেন, এমনটাই জানতে পারা যাচ্ছে। 45 জন দূতাবাসের কর্মীকে আফগানিস্তানের মাটি থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ভারতে এসে পৌঁছেছে সেই বিশেষ বিমান, কিন্তু এখনো বেশ কয়েকজন ভারতীয় কিন্তু আটকে রয়েছেন আফগানিস্তানে। এবং এরপর কি হতে চলেছে আফগানিস্তানের, সেই নিয়ে কিন্তু চূড়ান্ত আতঙ্কের মধ্যে, একটা অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে, বিভীষিকার মধ্যে রয়েছেন সেখানকার মানুষ। তাদের মাথার উপর কোনো ছত্রছায়া নেই, কোনো সরকারের ছত্রছায়া নেই, কোনো প্রশাসনের ছত্রছায়া নেই এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের মানুষদের মাথার উপর। তালিবানরা দখল করে নিয়েছে। প্রায় 1 থেকে 1.5 মাস ধরে আফগান সেনার সঙ্গে তালিবান জঙ্গিদের তীব্র সংঘর্ষ চলে এবং দেখা যায় যে বিশেষ করে মার্কিন সেনা আফগানিস্তানের মাটি থেকে সরতে শুরু করতেই কিন্তু বিশেষ করে বেশি শক্তি নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তালিবান জঙ্গিরা। একের পর এক বড় বড় শহর, গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করতে থাকে তালিবানরা। এবং রবিবার কিন্তু আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল করে নেয় তালিবানরা। এই মুহূর্তে কিন্তু আতঙ্কের মধ্যে আফগানিস্তানের মানুষ। তীব্র নৈরাজ্য চলছে গোটা আফগানিস্তান জুড়ে। সেখানকার মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা, ভয় কাজ করছে এরপর কি হতে চলেছে সেই নিয়ে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক इकबाल चंद मल्होत्रा। फोन लाइन তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। इकबाल चंद जी, आपको कोलकाता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पहले जो पूछना चाहेंगे इकबाल जी, अफगानिस्तान इश्यू में मार्किन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो कहा है, जो बाइडेन का जो स्टैंड पॉइंट है, उसमें आपका क्या कहना है मिस्टर मल्होत्रा? देखिए, पहले तो धन्यवाद, आप मुझे बुलाया, आमंत्रित किया आपके शो में। जी। देखिए, ऐसा है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने 3-4 चीजें कही हैं उनके ये जो भाषण हुआ था कल। एक तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तालिबान के साथ में एक डील किया था पिछले साल में कि ये अफगानिस्तान में वो एक पीस एग्रीमेंट करते हैं तालिबान से, और अमेरिकन जो सैनिक हैं, अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। तो प्रेसिडेंट बाइडेन के पास एक ऑप्शन था
कि या तो ट्रंप के एग्रीमेंट को सपोर्ट करें या वो लड़ें। अब वो कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में गए थे 2001 में, वहां पे अल कायदा को खत्म करने के लिए, उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, और जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने 9/11 का कांड किया उनको खत्म करने के लिए। उनके वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं, उनके गोल्स पूरे हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने ये ठेका नहीं लिया था कि हम यहाँ पे अफगानिस्तान की सरकार को सपोर्ट करते रहेंगे सैनिकों के साथ में। उनकी 3 लाख सैनिकों की आर्मी जो है, अमेरिका ने फंड की, फाइनेंस की, उसको वेपन दिए, हथियार दिए, ट्रेनिंग दिए। अफगानिस्तान के अफसर इंडिया में भी ट्रेन हो रहे थे, लेकिन जब उनको लड़ने के लिए उनके अंदर में वो इच्छा ही नहीं है, द विल टू फाइट, तो क्या होगा? कौन उनको सपोर्ट करेगा? तो वो कह रहे हैं कि हम इसको इस कंट्री के अंदर में इनडेफिनेटली रह नहीं सकते। 20 साल तो हो गए, अब कितने साल और? 5 साल और, 10 साल और, कितने साल और रहेंगे? और ये लड़ाई चलती रहेगी। ये तो सिविल वॉर है, और सिविल वॉर में हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा रोल था तालिबान को खत्म करने का। अब तालिबान जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान का एक्सटेंशन है, तो वो आप अगले सवाल में पूछ सकते हैं। इकबाल चंद जी, आपको कहना चाहेंगे कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान जैसे राज कर रहा है, आगे क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है अफगानिस्तान की हालत कौन से मोड़ लेगी? इकबाल चंद जी, देखिए ऐसा है, हम लेट्स बी वेरी क्लियर, ये जो तालिबान है इसकी स्थापना 1995 में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मेजर जनरल नसीरुल्लाह बब्बर ने की थी। और ये जो तेजी से तालिबान घुसा है अफगानिस्तान में पिछले 4-5 हफ्तों में, ये तेजी है क्योंकि पाकिस्तान ने इसको पूरा सपोर्ट और समर्थन दिया है। तालिबान इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ISI। ये एक पाकिस्तान का दस्ता है जिसको कि इन्होंने आगे भेजा अफगानिस्तान में, ताकि पॉलिटिकली ये कहें कि जी ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये मुजाहिद हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमके हैं। दुनिया जानती है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की ISI का टुकड़ा है। अब अफगानिस्तान के अंदर में 3-4 किस्म के नेशनैलिटीज हैं। एक पश्तून है जो 42% उनकी पॉपुलेशन है अफगानिस्तान में। एक आपके ताजिक हैं जिनकी 27% पॉपुलेशन है, और 9% के उज़्बेक हैं, और ये आपके हज़ारास हैं। अब ये जो तालिबान ने कब्जा किया हुआ है, ये कब्जा एक किस्म का पूरे अफगानिस्तान पे है नहीं, क्योंकि सिविल वॉर चल रही है, पूरी तरह से प्रेस की रिपोर्टिंग नहीं हो रही। और मेरा पूरा यकीन है कि अफगानिस्तान जो है 3-4 टुकड़ों में टूट जाएगा। एक पश्तून हिस्सा होगा जो पाकिस्तान के अधीन होगा, एक ताजिक हिस्सा होगा जो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ में होगा, और उसको सपोर्ट मिलेगा इंडिया से, अमेरिका से और यूरोपियन कम्युनिटी से। और एक हज़ारा हिस्सा होगा जो कि जिसको कि ईरान से सपोर्ट मिलेगा। उनके रिलीजियस डिफरेंसेस भी हैं, हज़ारा और शिया, बाकी लोग जो हैं वो सुन्नी हैं, और उनकी भाषा ताजिक की भाषा दरी है, पश्तून की भाषा पश्तो है, तो दे आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो कॉन्ट्रडिक्शन बहुत हैं, और ये कॉन्ट्रडिक्शन 1973 में उभर के आई थी, जब वहां पे एक कू हुआ था और जो राजा था उसको डिपोज कर दिया गया था। और तब से आप देखिए कि एथनिक डिविजन जो है अफगानिस्तान में वो उभर के निकली हैं, और ये एक इंटर एथनिक सिविल वॉर है और कुछ नहीं है, इंस्टिगेटेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना। क्योंकि चाइना को रास्ता चाहिए थ्रू अफगानिस्तान इनटू द मिडिल ईस्ट। दे वांट ए लैंड रूट इनटू मिडिल ईस्ट। वो रेलवे लाइन और रोड बनाएंगे, पेशावर टू काबुल, काबुल टू अशकाबाद, अशकाबाद टू मशहद, मशहद टू तेहरान। और उसके जरिए उनका सारा जो तेल होगा वो और नेचुरल गैस होगा वो इन रोड और पाइपलाइन और रेल नेटवर्क के थ्रू चाइना में जाएगा, वेस्टर्न चाइना में। इकबाल चंद जी, खास करके औरतों को लेके जैसे फतवा जारी किया है तालिबान ने, आपको क्या लगता है कि अभी अफगानिस्तान में औरतों का हालत क्या होने वाला है? इकबाल चंद जी, व्हाट अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट इन अफगानिस्तान? देखिए ऐसा है कि टिपिकल इस्लामिक सोसाइटी में women have an inferior role,
जो ये फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक लोग हैं ये विमेन को ज्यादा ओहदा नहीं देते और अफगानिस्तान में विमेन आर सीन not even seen and not heard at all. So they have no role. But Afghanistan was an exception. अफगानिस्तान में 1972 तक तो जितनी सोसाइटी थी वेस्टर्नाइज थी एंड विमेन वर वेयरिंग मिनी स्कर्ट एंड वॉकिंग अराउंड, बट 72 के बाद में जो उनकी मिडिल क्लास थी वो सारी की सारी चली गई अफगानिस्तान से बाहर, और ये उनके जो मतलब अनएजुकेटेड लोग थे वो अफगानिस्तान में रह गए जिन्होंने सोवियत का को रेजिस्ट किया। और क्योंकि फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तालिबान को जन्म दिया था और वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो विमेन आर लाइकली टू बी सप्रेस्ड एंड ओप्रेस्ड। लेकिन जो पब्लिकली औरतों के साथ हशर हो रहा था फर्स्ट रूल ऑफ तालिबान में फ्रॉम 1996 टू 2001, वो शायद अभी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त उनको बड़ी बुरी पब्लिसिटी मिली थी और पाकिस्तानियों को भी बड़ी बुरी पब्लिसिटी मिली थी। तो इस बार तो वो मतलब पब्लिसाइज नहीं होगा, लेकिन अंदर से जो औरतों को तकलीफें होंगी वो तो होंगी ही होंगी। जी जी, आज हमने देखा है कि कुछ भारतीय अफगानिस्तान से लौटे हैं, कुछ इंडियन एम्बेसी के कुछ एम्प्लॉयज लौटे हैं, कुछ आधिकारिक लौटे हैं। अभी भी बहुत सारे भारतीय अफगानिस्तान में है, अभी भी लौटे नहीं है वो लोग। इस बारे में क्या कहना है आपको? भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंतजाम कर दिया, प्रबंध कर दिया उनको निकालने के लिए। फ्लाइट जा रही हैं, वहाँ पे यूएस मरीन 6000 आए हुए हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पे कब्जा किया हुआ है, उन्होंने वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे कब्जा किया हुआ है। उन्होंने ये तालिबान को बताया है कि जो रेफ्यूजीज बाई एयर निकल रहे हैं, जो आप उसमें बाधा डालोगे तो हम आपके ऊपर से गोला बारूद बरसेंगे। अमेरिका के पास में बहुत सारे ड्रोन्स हैं, उनके पास में फुल एरियल डोमिनेंस है, और मेरा ख्याल है कि ये जो जितने रेफ्यूजी हैं और जितने फॉरेन नेशनल्स हैं वो अगले 4-5-6 दिनों में निकल जाएंगे। हमारे जहाज भी जा रहे हैं, एयरफोर्स के जहाज जा रहे हैं वाया ईरान, क्योंकि हमें पाकिस्तान से ओवरफ्लाइट राइट्स नहीं है, तो हम वाया ईरान वाया मशहद जा रहे हैं वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि हमारे सारे नागरिक वहाँ से आ जाएंगे। तकलीफ होगी, 4-5-6 दिन लगेंगे, लेकिन सब निकल आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट के आसपास 6000 अमेरिकन सैनिक हैं और उनके पास में फुल इंटेलिजेंस है, फुल सैटेलाइट सर्वेलेंस है, सब कुछ है अभी भी। ये तो एक मतलब सिंबॉलिक जो ये फॉल हुआ है काबुल का, इसकी जो सिंबोलिज्म है, ये आप वियतनाम के साथ में लोग उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन ये एक करप्ट गवर्नमेंट थी उस वक्त इस समय काबुल में, और वो करप्ट थी बिकॉज इट वाज रिटन विद फैक्शन and it was very corrupt like the government in Cuba. But instead of comparing the fall of Kabul with the fall of Saigon, we should compare it historically with the fall of Havana in 1959. जी, एक बात शायद जान में आया कि तालिबान अफगानिस्तान में जो अभी सरकारी कर्मचारी जो है, सरकारी एम्प्लॉयज है, उनको क्षमा घोषणा किया है। ये वाकई क्षमा घोषणा किया है, ये वाकई सच है, या फिर ये तालिबान का कोई चाल है, अपना इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है तालिबान? ये इसमें नादानी की बात है मानने के लिए कि ये क्षमा घोषणा है। They're all PR stunts and political spins। एक्चुअल हकीकत यह है कि जिन्होंने अमेरिकन का समर्थन किया है उन सबको ये या तो मार देंगे या उनकी बड़ी बुरी हालत कर देंगे और उनको जेलों में फेंक देंगे। ये बिल्कुल रहम करने वाले नहीं किसी पे। तो मैं ये पाकिस्तान की और ISI की और ये तालिबान की जितने भी बयान हैं मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अब पाकिस्तान जीत गया है। अमेरिका 20 साल से लड़ के हार गया है, और अमेरिका का एक्चुअल दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है, और वो अफगानिस्तान में तालिबान नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तालिबान तो पाकिस्तान का हिस्सा है। इट्स अ टूल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ऑफ द पाकिस्तान ISI। तो अब देखिए, मैं तो इन बयानों को कोई खास अहमियत नहीं देता। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल चांद जी आपको हमसे बात करने के लिए। কথা বলছিলাম বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইকবাল চাঁদ মালহোত্রার সঙ্গে। এই মুহূর্তে কিন্তু বড়সড় নৈরাজ্যের মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান। এই মুহূর্তে সেখানে কোনো সরকার বা প্রশাসনের ছত্রছায়া নেই, মানুষ আতঙ্কিত তালিবান শাসনের জন্য।